डू यू थिंक टीचर को वो रिस्पेक्ट और वो वैल्यू मिलती है हमारे कंट्री में जो एक इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर और मे बी डॉक्टर और मे बी एक एंटरप्रेन्योर को मिलती है? You can be very good in terms of knowledge, but you cannot be equally good in transacting that knowledge. Flaws जो हैं उन कोर्सेज में नहीं है, फ्लॉज उनके इम्प्लीमेंटेशन में है। That's what I'm saying, of course, कि implementation आप बात में करते हैं कि हम बीएड की बात क्यों करें? All those who are doing MD, are they qualified? So I got failed in my exams. Reason was very simple because सब में जो भी लिखा था गलत लिखा था मैंने. My parents were very worried about it कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि इसको अच्छे से पढ़ाया भी गया है और मैं हमेशा सेल्फ स्टडी और पेरेंट्स नहीं पढ़ाया मुझे, कोई ट्यूशन हमने ज़्यादा, मुझे लगता है 9th या 10th में मैंने फर्स्ट ट्यूशन गया हूँ अपनी लाइफ में, मुझे ट्यूशन ही नहीं पता था क्या होता है. सो प्रॉब्लम क्या थी? बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी. और जैसे मैंने अभी आप शेयर करना चाहूँगी आपसे कि मेरा ये फर्म बिलीव क्यों है कि एक टीचर उसका एक रिमार्केबल इम्पैक्ट है बच्चों की लाइफ पर. There was one of my students, he was there in grade 12 with me, and after passing grade 12 he took admission in BTS. So after 2-3 years I got to know that he underwent an accident. Welcome to this podcast, ma'am. Let's talk education. Thank you so much. So I want to know brief about your journey of 20 years. अगर 20 years को हमने summary में करना हो 2 मिनट की summary में, तो how you will define yourself? Okay. So who was Mukta Sharma and who is Mukta Sharma now? Who was Mukta Sharma? So Mukta Sharma was a passionate girl and who wanted to do something in her life. And what she decided to be a teacher. डिसाइड कैसे किया वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है. वंस आई वाज देयर इन माय क्लास एंड माय टीचर टोल्ड मी टू एक्सप्लेन वन कॉन्सेप्ट इन द क्लासरूम. आई एक्सप्लेन्ड दैट कॉन्सेप्ट इन द क्लासरूम एंड टीचर अप्रिशिएटेड मी कि आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हो बेटा, नाइसली डन. दिस एक्चुअली बूस्टेड अप माय कॉन्फिडेंस एंड थ्रू दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई न्यू दैट आई कैन टीच वेल. And since I was good in studies, I completed my MSc in chemistry, organic chemistry. And finally, I became a chemistry teacher. I started teaching grade 11th and 12th. And down the line, 20 years from chemistry teacher, now I'm sitting here as a principal of a school. And 20 plus years teaching students of grade 11 and 12. What subject you used to teach? Chemistry. Chemistry. Yeah. So क्यों केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था आपका? मतलब मेरा तो बहुत ही बेकार सब्जेक्ट था वो. Actually, I was interested in science basically. But once I completed my grade 12 and I took admission in BSc. So again, when we are talking about education, I need to talk about impact of a teacher in your life. One of my chemistry teacher who was teaching there in BSc, he complimented me कि बेटा you are doing very well, आप चाहें तो आप इसमें आगे pursue कर सकते हैं. And then I decided it was a very tough competition that time having admission in MSc chemistry because 11-12 सीट हुआ करती थी and उन सीट्स पर 250-300 बच्चों में compete करना was difficult task. And finally I took admission there in MSc in DAV College Muzaffarnagar. I completed my MSc and finally I joined school in Ghaziabad. कैसा फील होता है being a teacher? Feeling is actually it is very difficult to describe this thing in words. Initially आपको लगेगा कि I'm responsible for so many things. Yeah. That is not being done by me. So many lives actually. So many lives are there. आप यदि मैं थोड़ा सा कन्वेंशनली हटके मैं बात करूँ तो it gives a sense because if you are working here you are responsible for your work. But being a teacher you are not only responsible for your work, you are responsible for the work of your students as well. So वहाँ if you get them work as per your expectation, वहाँ आपका time, आपका dedication, your expertise, they all have to be on next level. तो यहाँ आपका सिर्फ काम नहीं है, you are touching the lives, you are transforming them. But once you are able to do that, फिर ही आपको पता चलता है कि this profession is actually a different profession. एक टीचर ही है
जो डॉक्टर्स भी बना रहा है, जो इंजीनियर भी बना रहा है, जो पॉलिटिशियंस भी बना रहा है. सो व्हेन यू आर एबल टू क्रिएट समथिंग, इसको सिर्फ प्रोफेशन कहना वुड बी लिटिल रॉन्ग. आपने बहुत ही सही स्टेटमेंट एक बोला कि एक टीचर ये है जो एक इंजीनियर भी बनाता है, एक आईएएस ऑफिसर भी बनाता है, एक डॉक्टर भी बनाता है और एक पॉलिटिशियन भी बनाता है, मतलब व्हाटएवर यू से, एक एंटरप्रेन्योर भी बनाता है. बट डू यू थिंक टीचर को वो रिस्पेक्ट और वो वैल्यू मिलती है हमारे कंट्री में जो एक इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर और मे बी डॉक्टर और मे बी एक एंटरप्रेन्योर को मिलती है? अगर नहीं मिलती तो क्यों है ऐसा? इन ट्रू सेंस नहीं. Yes. अभी वो चीज नहीं है. पीपल थिंक इफ यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग यू कैन बी देयर, यू कैन बी अ टीचर. इस तरह का माइंडसेट लोगों का है. बट ओके, यू कैन बी इन स्कूल, बट कैन एवरीवन बी अ गुड टीचर? नो, एवरीवन कांट बी. इसके लिए तो बहुत तपस्या लगती है एक अच्छा टीचर बनने के लिए, बिकॉज टीचर्स लाइफ इज नॉट कन्फाइंड टू स्कूल ओनली, इट्स नॉट कन्फाइंड टू कंप्लीटिंग सिलेबस ओनली. इट इज हैविंग अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम जहाँ आपको बहुत कुछ बच्चों के लिए करना है. क्यों नहीं, जैसे मैंने कहा, क्यों नहीं मिलती का, लोगों ने इसको ऐसा ही लेके चल दिया कि इफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग यू कैन बी अ टीचर. तो जाहिर सी बात है, व्हेन दिस इज अ माइंडसेट ऑफ पीपल देयर इन द सोसाइटी, तो वो रिस्पेक्ट इस प्रोफेशन के लिए आएगी ही नहीं. बट येस, इफ यू आर एबल टू प्रूव योरसेल्फ एज अ वेरी गुड टीचर, फिर रिस्पेक्ट वर्ड भी छोटा रह जाता है. I'll give you one example. मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी फ्लॉ मैं एक सिस्टम का बोलूँगा, टीचर की गलती नहीं है इसमें. Someone applied in Spotify. One of my friend applied in Spotify. Okay. There are like 1800 applications, those who have applied for the same. और सिर्फ एक का सिलेक्शन होना है और ऑलमोस्ट 1.5 साल से प्रोसेस चल रहा है. तो जस्ट इमेजिन कि कितनी लेवल पे स्क्रूटनिंग हुई होगी सिर्फ एक इंसान हायर करने के लिए, जो कि पोजीशन ऐसी पोजीशन है, शायद बहुत बड़ी पोजीशन भी नहीं है कि आप कंपनी का सीईओ हायर कर रहे हो या आप कंपनी का फाउंडर ही हायर कर रहे हो. सो इट्स जस्ट अ पोजीशन. इतने स्क्रूटनिंग, इतने लेवल्स पे स्क्रूटनिंग होने के बाद एक पोजीशन को हायर किया जाता है. तो वो मुझे लगता है कि टीचर के प्रोफेशन में भी ऐसे ही होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. टीचर बनना एक टास्क होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एक आईआईटी क्लियर करने के लिए एक इंसान 2, 3 साल, 4 साल स्पेंड करता है सिर्फ ट्रेनिंग्स में. सिमिलरली एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए वो 2, 3 साल, 4 साल ट्रेनिंग्स में स्पेंड करता है, उसके बाद जाके आईएएस ऑफिसर बनता है. अगर मैं अपने टीचर प्रोफेशन की बात करूं, अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, एक टीचर बनने के लिए आपको बीएड का कोर्स चाहिए. वो बीएड का कोर्स भी आज के टाइम पे ऑफलाइन अवेलेबल है, जहाँ आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है. वोकेशनल ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल है. तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास वो रिग्रेस प्रोसेस के बाद एक टीचर आ रहा है कैंपस में जिसको हम हायर कर रहे हैं? So do you agree on the point? Yes. Actually, you have raised a very nice point over here. बिल्कुल ठीक बात है कि टीचर का एक एक्सपर्टीज, एक कॉम्पिटेंसी होना बहुत जरूरी है. बट ठीक है, ग्रेजुअली ये इट वाज नॉट देयर इन द पास्ट, बट एजुकेशन सिस्टम दैट इज चेंजिंग नाउ. आपने देखा होगा, बिकॉज सिंस यू आर वर्किंग इन दिस एजुकेशन फील्ड, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ capacity building programs. Now CBSE is coming up with these training sessions. If you are a teacher, you have to have training of 50 hours in a year, or वो rigorous training programs हैं. You should be aware not only about your syllabus, you should be aware of teaching pedagogies, you should be aware of school health and wellness. So many things are there. तो जो past में नहीं हुआ, अब प्रेजेंट में उस पर कोशिश बिल्कुल की जा रही है. बट स्टिल आई डोंट कंसिडर दैट सिस्टम्स आर वेरी रोबस्ट सिस्टम, बिकॉज आई हैव सीन दोस ट्रेनिंग्स आल्सो, कैसे ट्रेनिंग्स हो रही हैं और कितना लोग सीरियसली ले रहे हैं उस ट्रेनिंग को. मेरा क्वेश्चन है कि हायर करने से पहले ही अगर एक सिस्टम बन जाए जहाँ पे वही सिर्फ एंटर कर पा रहा है सिस्टम में जो बहुत पैशनेट है, एक तो मुझे लगता है इस जॉब की रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि इजीली जॉब नहीं मिलेगी. बिल्कुल. देखिए, प्राइवेट स्कूलिंग की जब हम बात करें, प्राइवेट स्कूल्स की जब हम बात करें, तो वी आर हैविंग आवर ओन सिस्टम टू अपॉइंट अ टीचर. Absolutely. And that is a rigorous one. Right. The teacher has to appear in written test first. The teacher has to go to the classroom for a demo session. और demo session के बाद भी हम ये बात करते हैं कि if you are coming to a school, if you really want to teach a subject, आपका पैशन, आपका डेडिकेशन, आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस उसमें क्या है. सो कुछ लेवल पर जो अच्छे स्कूल्स हैं, दे हैव सेट रूल्स एंड रेगुलेशन. उनका एक पैटर्न है ऑफ हायरिंग अ टीचर. बट यस, ऑफ कोर्स
यू राइटली सेड कि इससे पहले भी जितनी भी चीज़ें वहाँ पे भी रिगरस सिस्टम एक होना चाहिए कि नॉट ओनली बाय क्वालिफाइंग योर एग्जामिनेशन, आपका एक इंटरव्यू सेशन भी होना चाहिए वेयर द इंटरव्यूअर कैन गेट टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, हाउ पैशनेट यू आर अबाउट टीचिंग. बिकॉज एक दो बहुत फर्क है एक चीज़ में, यू कैन बी very good in terms of knowledge, but you cannot be equally good in transacting that knowledge. Transacting that knowledge is really important. Exactly. Because knowledge तो आज के टाइम पे Google पे भी अवेलेबल है. आप मुझसे बात करेंगे, since I am having all my experience teaching grade 11th and 12th student, if you will ask me to go to grade nursery or prep and you ask me to teach over there, I won't be able to do justice, because हर एक विंग के लिए, हर एक क्लास के लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ स्किल की जरूरत है. उसके लिए टीचर्स को प्रॉपर्ली ट्रेन होना चाहिए. सो बिल्कुल ठीक है, शुरुआत हुई है, लेकिन यस अभी इसमें बहुत काम करने की जरूरत है. कितना ब्लेम हमारे बीएड सिस्टम को करते हैं, जो कि मैंडेटरी है एक टीचर बनने के लिए हर स्कूल में. कितने लोग, कितना ब्लेम आप इस बीएड सिस्टम को करते हैं? देखिए, बीएड फ्लॉज जो हैं उन कोर्सेज में नहीं है, फ्लॉज उनके इम्प्लीमेंटेशन में है. That's what I'm saying, of course, implementation. आप बात करते हैं कि हम बीएड की बात क्यों करें? All those who are doing MBA, are they qualified for the management courses? मतलब are they able to go to a company to get that job? MCA लोग कर रहे हैं. It means it is very easy to get pass in any of the courses, but it is जो एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी की जरूरत होती है, that is somewhere missing. Even if you are passing that course. I believe whether you talk about school education system, you talk about college, university education system, सारे के सारे सिस्टम में एक ही कमी है, that is hands-on practice and real skills. Yes. जो कि कोई बात ही नहीं कर रहा. I'm sure बहुत सारे schools ने अब शुरू किया hands-on practice, but मुझे ऐसा लगता है कि necessity is 80% and still we are providing 20%. वो बार को रेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब like you mention कोई MBA कर रहा है, उसको आपको लगता है क्वालिफाइड है. Yes, on papers वो qualified है, but MBA का MBA नहीं पता उसे. नहीं पता. उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं किया. He's not ready for job. He's not ready for job. पेपर पे तो he is qualified. Yes. तो एक्सपेक्टेशंस रेज कर दी ना हमने MBA करने के बाद एक सिस्टम ने कि now you are MBA qualified. Now you should expect 50 to 70,000 per month salary. आप में स्किल है या नहीं है वो मैटर नहीं करता. Now you have a degree of MBA. मैं ऐसा मानती हूँ कि यदि आपने MBA कर लिया, आपने BEd भी कर लिया है, where you will reach that depends upon your skills. Absolutely, absolutely. उसके बाद आप रियल वर्ल्ड में हैं, और रियल में if you are going to hire a person in your company, तो आपके लिए वो जो MBA की डिग्री, that is just a piece of paper. You would be looking at the person in true perspective, whether he is competent enough or not. Absolutely. So this is applicable everywhere. We never ask for any degree. हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही नहीं पूछते शायद. हम स्किल्स सेट देखते हैं क्या है क्या नहीं है, वो मैटर करता है. If this would have been the case, there are so many teachers who are applying to get a job in schools. Are they all being selected? No. Absolutely. वो एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि दैट, वो एक नॉर्म्स भी हैं कि भाई आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है, आपको BEd होना है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू टीच प्रॉपर्ली, you cannot be a teacher. But there was a research which was saying specifically for Indian education system, 96.3 to be precise, 96.3% of teachers are not passionate. Still they are into the system. जब तक वो passionate teachers नहीं आएंगे हमारे system में, तब तक हम system को drive नहीं कर सकते. Even आप भी अगर देखोगे आपके स्कूल में, if you actually think on it and start writing on a paper कि मेरे स्कूल में कितने teachers हैं जो genuinely बहुत ही passionate है, so you will not be able to find 3 to 4%, more than 3 to 4%. ये सबसे बड़ा injustice है to you, to your children. बिकॉज जैसे मैंने एक बात कहेंगे कि टीचर्स आर द वंस दोज हु आर क्रिएटिंग अदर प्रोफेशनल्स. वो वही IAS बना रहे हैं, वही इंजीनियर्स बना रहे हैं, वही डॉक्टर्स बना रहे हैं, वही पॉलिटिशियंस बना रहे हैं. इफ दे आर नॉट पैशनेट अबाउट देयर प्रोफेशन, तो जाहिर सी बात है इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी उसी लेवल का होगा. एक और चीज़, एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके मैं बात करना चाहूँगी. देख लीजिए रिकॉर्ड करने जैसा है या नहीं है, मेरे दिमाग में बात आई है. If teachers are not able to do justice with their job when they are teaching students in their childhood, उनके mindset पर काम नहीं किया. If by chance they happen to be the politician, they happen to be the prime minister, उस बच्चे का mindset, उस बच्चे का thought process, उस बच्चे की mentality आपके पूरे nation को वो drive करेगी, उसके nation उसी direction में चलेगा. True. तो यदि आपने आसिम मुनीर का केस आपके सामने, एक जिहादी को यदि उन्होंने
आर्मी चीफ बनाया तो उसके रेपरकशंस पूरे कंट्री को देखने पड़े हैं. Yes. तो बहुत ज़रूरी है कि चाइल्डहुड एजुकेशन पर बहुत ध्यान देना चाहिए, उनके स्किल्स पर, उनके माइंडसेट पर, उनकी साइकोलॉजी पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है. I guess a foundation होता है स्कूल एजुकेशन सिस्टम. बिल्कुल बिल्कुल. So when I started working for my brand, so we started with college trainings where we used to do a training known as developing you. But we analyzed or realized after few months or year कि I guess if we want to change the education system, we should start working with schools because that's a foundation and that's where you can create wonders. But after coming to this education system, what we realized, the change which is required is not able to happen. Why it is not happening? Because of the system. So even I was discussing with someone in yesterday podcast ki name any kind of any government, whatever it is. I don't recommend. I'm not promoting any government, but no government comes forward to where they create a propaganda of changing education system of a country because that's the only thing which can change the whole country. Exactly. So उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है आज के टाइम पे. यही रूट है. अपने इस रूट पर ही काम करना है. और इसके जो रिजल्ट्स हैं फिर आपको आने वाले जो डेकेड्स में देखने को मिल जाएंगे. बिकॉज आज का जो बच्चा है, दे आर द टुमारोज यूथ. और ये डिसाइड करेंगे कि आपकी जो वर्ल्ड है या जो आपको जो कंट्री है उसकी डायरेक्शन कहाँ किस तरफ जानी है. सो आई हैव सीन लॉट ऑफ एग्जांपल्स कि माइंड इवॉल्व नहीं हो पा रहा लोगों का. इफ आई टॉक अबाउट स्पेशली दिस जेन ज़ी क्राउड, ये इवॉल्व हो गए हैं फिजिकली बट मेंटली दे आर स्टिल किड्स. उसका क्या रीजन है आपको लगता है कि? देखिए 4-5 रीजंस आर देयर. किसी एक को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना विल बी एन इनजस्टिस. ऑफ कोर्स. First of all, we need to talk about their healthy mindset. Healthy mindset comes from healthy environment. And healthy environment is what for a child? It's their family, healthy atmosphere in school. So nowadays, broken families are there, disturbances are there, so many divorce cases are there. If the child is living in that environment, you cannot expect a child, they will be growing in a healthy manner. कहीं ना कहीं aggression वो रहेगा ही रहेगा. And whenever there will be a time, it is going to come out. First thing. Second thing, if I talk about, so much time they are spending on social media. They're not matured enough to take all these things because whatsoever is coming to them, even the small things, जिनकी कोई importance उनकी life में होनी नहीं चाहिए, they are taking all these things seriously. Trolling हो रही है, they are just passing on the messages, spending a lot of time there in the social media. And what's happening? That is also increasing pressure on their mind. Aggression बढ़ रहा है. If someone is hitting you, someone is hitting on your ego, your self-respect, जाहिर सी बात है आप एक healthy environment पे तो आप नहीं हैं उस समय पे, वो एक aggression सामने जाएगा ही जाएगा. Third, the pressure of achieving marks and percentage. So when everything is rotating around one thing, marks, percentage, marks. So you are focusing on that thing only. Where is your creativity? Suppose if I am a very good, I am very good in mathematics, and I'm not that much interested in what you call it SST. But even then, I have to study SST, till grade 10. And I have to score marks because again there is a pressure कि बेटा इसमें तो कर लिया, मैथमेटिक्स में तो 98 आ गए, ठीक है, but you scored very less in SST. So no matter whether you are interested or not, you have to spend time on all those things where you are not that much interested. तो जहाँ आपकी एनर्जी और आपका पोटेंशियल लगना चाहिए वो नहीं लग पा रहा है. ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं. और दूसरी बात, we are not spending much time on life skills. In our schooling, we talk about एक मॉरल एजुकेशन हुआ करता था और हमसे पूछा जाता था बाद में इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है. सो मॉरल एजुकेशन इन चाइल्डहुड इज एक्चुअली द टाइम वेयर यू कैन वर्क अपॉन द साइकोलॉजी, यू कैन वर्क अपॉन द थॉट प्रोसेस ऑफ अ चाइल्ड. तो हम बात करते हैं जब लाइफ स्किल्स की, हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, इमोशनल क्वोशंट की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है कि सब चीज़ों से ज़्यादा बढ़ के मैं इमोशनल क्वोशंट की बात करनी चाहिए, इमोशनल स्ट्रेंथ की बात करनी चाहिए. सो व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट these things there in the childhood, then only you can see the changes when the students will be there in their adolescence. अभी बात करते करते ना एक I just came across a thought, और एक स्टोरी है जो मैंने सुनी थी और आई एम श्योर आपने भी सुनी होगी.
मैं आपका व्यू सुनना चाहता हूँ उस पर. देयर वर 5 पीपल सिटिंग. हर एक इंसान के आगे एक नेम प्लेट था और उसका डेजिग्नेशन लिखा हुआ था. Yes. और एक इंसान था जिसके नीचे कोई डेजिग्नेशन नहीं लिखा हुआ था. समवन वाज IAS ऑफिसर, समवन वाज डॉक्टर, समवन वाज डॉक्टर एंड समवन वाज इंजीनियर और एक लॉयर थे. तो ऑडियंस से पूछा गया, इफ यू वांट टू रेट ऑल दीज 5, आप कैसे रेट करोगे? तो लोगों ने बोला फर्स्ट IAS ऑफिसर, सेकंड लॉयर, थर्ड डॉक्टर मे बी और फोर्थ इंजीनियर एंड द फिफ्थ विदाउट अ डेजिग्नेशन. तो वो जिनका डेजिग्नेशन था वो बहुत ही एग्रेसिवली खड़े हुए और बोलते हैं कि व्हाई यू आर रेटिंग मी एट द लोएस्ट, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरीवन, आई एम द टीचर. सो ये स्टेटमेंट ये मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई, आपको क्या ऐसा फील होता है कभी आपके सिस्टम में कि बीइंग अ टीचर और बीइंग अ प्रिंसिपल हमारे सिस्टम में और हमारे कंट्री में वो रिस्पेक्ट नहीं है जितनी पहले होती थी एक टाइम पे? बिल्कुल. आई स्टिल रिमेम्बर मेरे पेरेंट्स को एक बार 2nd ग्रेड में मेरे प्रिंसिपल से नोटिस आया था कि उन्होंने बुलाया मेरे पेरेंट्स को. माई फादर वॉज नॉट एबल टू स्लीप होल नाइट कि मैंने क्या किया होगा. और आज के पेरेंट अगर हम देखते हैं वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम देख लेंगे कल. तो वो थॉट प्रोसेस जो चेंज हो गया है, व्हाट इम्पैक्ट इट इज क्रिएटिंग ऑन अ सिस्टम एंड व्हाट इम्पैक्ट इट इज क्रिएटिंग ऑन बीइंग अ प्रिंसिपल और बीइंग अ टीचर एज वेल. वेरी ट्रू. आई हर्ड अबाउट दैट स्टोरी. और बिल्कुल ठीक बात है कि टीचर्स को वो रिस्पेक्ट सोसाइटी में नहीं है जो पहले हुआ करता था. या स्कूल्स को लेके अभी एक जो शिफ्ट है, not only the mindset of parent but also in the mindset of students. They are more focused about the facilities that are being provided in school. एक ये रिलेशन सीखने और सिखाने का नहीं है, ये कस्टमर प्रोवाइडर के बीच का एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया है. एंड सिंस इट इज अ काइंड ऑफ स्कूल इज बीइंग सीन एज अ सर्विस प्रोवाइडर, तो वो सर्विसेज के तौर पे ही सारी चीज़ों को रेट किया जा रहा है, उनसे वैसे ही बातचीत की जा रही है. सो इफ द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू चेंज देयर माइंडसेट इन अ वे कि बच्चों को बड़ा करना या बच्चों को सिर्फ फैसिलिटीज देना ही काफ़ी नहीं है, बच्चों के साथ जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट बॉन्ड कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट और दैट इज द रोल ऑफ अ टीचर. यदि इस बात को टीचर्स भी समझें, पहली बात, जैसे मैं आपने बात करूँ कि सारे टीचर्स बहुत अच्छे टीचर्स हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर जॉब्स टू द फुलेस्ट, वो बच्चों के साथ कनेक्टेड नहीं है, दे वोंट बी एबल टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स फर्स्ट ऑफ ऑल. और जब तक बच्चा वो रिस्पेक्ट टीचर के लिए नहीं लेगा, दैट रिस्पेक्ट विल नॉट बी पास ऑन टू द पेरेंट्स एज वेल. तो पहले टीचर्स को भी यहाँ पर कमर कसनी पड़ेगी. दे शुड बी पैशनेट अबाउट देयर प्रोफेशन, दे शुड टेक देयर प्रोफेशन सीरियसली. कि वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सेंसिटिव प्रोफेशन यदि कोई है तो दैट इज अ प्रोफेशन ऑफ अ टीचर. एब्सोल्युटली. क्योंकि बाकी जगह गलती सुधारने की गुंजाइश है, यहाँ गलती सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है. यहाँ गलती करने से बहुत लोगों की लाइफ खराब हो जाएगी, बिल्कुल खराब हो जाएगी. एंड सेकेंडली, जब हम बात करते हैं कि पेरेंट्स को भी एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, ये सर्विसेज नहीं है. टीचर्स आपके बच्चों को लाइक यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम एट होम, और आप फिर बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि दे शुड डू दिस थिंग फॉर मी व्हेन आई विल ग्रो ओल्ड. आपकी एक्सपेक्टेशंस बच्चे से इतनी ज़्यादा हैं, आप अपने लिए वो डिमांड करते हैं. बट द टीचर्स दोज हू आर टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन इन स्कूल इन इक्वल मैनर, आप उनके लिए वो रिस्पेक्ट कैरी नहीं करते हैं. सो ये बोथ वेज, दिस विल गो बोथ वेज. मैं तो ये बिलीव करता हूँ, बीइंग अ पेरेंट, आई एम अ यंग पेरेंट, तो एक बच्चा संभालना कितना मुश्किल होता है और एक टीचर 30-40 बच्चों को एक साथ संभालती है. इट्स नॉट इजी जॉब. It's not easy. And when no matter how tired they are, if they are talking to one child, they will be equally energetic, they will be equally sweet. If they are talking to another child, they will be equally sweet and energetic to the second child as well. आसान नहीं है. हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ना, कोई हमसे दूसरे के बाद तीसरा सवाल पूछ ले तो इट्स नॉट ईजी. बट आप यदि उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग some things which are not appropriate to be used for a teacher, बच्चा सुन रहा है, बच्चा भी तो फिर उसी माइंडसेट के साथ आगे चलेगा. So Indian education system is dominated by rote learning. So ये आई एम श्योर बच्चों की क्रिएटिविटी पे भी इम्पैक्ट कर रहा होगा. कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है सिस्टम को? देखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज नॉट बेस्ड अपॉन रोट लर्निंग. हम गुरुकुल की बात करते हैं, वहाँ तो एवरीथिंग वाज लर्निंग बाय डूइंग. ये मैंने कहा जैसे मेरे फैसिलिटीज की बात करी, हमने फैंसी इंफ्रा की बात करी, हमने इन सब चीज़ों की बात की है. सो ग्रेजुअली वी टुक आवर चिल्ड्रन अवे
from that learning by doing, and we only force them to learn by rote learning. हमने वो वहाँ पर चीज़ें की हैं. जैसे आपने कहा कि रोट लर्निंग को कैसे चेंज किया जाएगा, दैट कैन बी डन बाय डूइंग इटसेल्फ. रियल टाइम जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो हमारी लर्निंग है, दैट इज मिसिंग इन द एजुकेशन सिस्टम. बाय प्रोवाइडिंग दैट थिंग ओनली, आई थिंक वी कैन ब्रिंग द चेंज. जैसे हमने बात करी, दे शुड बी वेरी क्लोज टू द नेचर. हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, बट इफ यू आर नॉट एक्सपोजिंग देम टू द नेचुरल रिसोर्सेज, दे वोंट बी एबल टू डेवलप अटैचमेंट टू रिसोर्सेज. और जब अटैचमेंट ही नहीं है तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या करेंगे? सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. दे शुड बी क्लोज टू नेचर, दे शुड टच द सॉइल, दे शुड सी वाटर, दे शुड फील द एयर. हम एसीज में बैठ के बात करते हैं, फिर हम फ्रेश एयर की बात करते हैं. सो until unless you don't have that passion, you don't have that attachment for resources, you won't be able to learn better. जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, जितनी भी डिस्कवरीज हुए हैं, वो पैशन से आई है ना. उनको कुछ लोगों को बहुत पैशन था कि दे वर वेरी पैशनेट अबाउट मैथमेटिक्स, और उन्होंने थ्योरम्स दे दी हैं. तो बच्चों को यदि वहाँ तक नहीं ले जाया जाएगा, उनको एक कमरे में बैठा के आपने सिखाना शुरू कर दिया, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट द ब्रेन विल डेवलप दैट वे, इसकी क्रिएटिविटी निकल कर आ पाएगी. आपने एक पॉइंट अभी बोला, पैशनेट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं सिस्टम को ना एक क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ, बिकॉज वी डील लॉट ऑफ स्कूल्स, वी डील in short we deal with lot of principals and we deal with lot of school owners as well. So मुझे ऐसा लगता है कि ये सिस्टम फर्स्ट स्टेप पे फेल हो जाता है जब एक इंसान कोई भी स्कूल बना सकता है. So if we talk about a lot of school owners, those I personally feel sometimes they are not qualified to even talk to anyone how they can run a school. So वो सिस्टम वहीं पे फ्लॉप हो जाता है, वो सिस्टम वहीं पे फेल हो जाता है. मुझे ये लगता है कि हमारे सिस्टम में एक पैशनेट इंसान, I'm not saying कि this should not be a business. It's okay to do a business in school. That's not an issue. If someone wants a 5-star service, तो वो 5-star होटल में जाएगा ना, वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाएगा. So similarly schools की अगर मैं बात करूँ, अगर किसी पेरेंट को अपने बच्चे के लिए फैसिलिटीज चाहिए, अगर पेरेंट अफोर्ड कर सकता है तो आप चार्ज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आर यू क्वालिफाइड टू रन अ स्कूल? सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हॉस्पिटल खोलने के लिए यू शुड बी अ क्वालिफाइड डॉक्टर टू रन अ हॉस्पिटल, एंड इफ यू वांट टू रन अ टीचिंग सेंटर, इफ यू own a teaching center, you should be a teacher by yourself so that you can run a teaching center. और I'm sure बहुत सारे आजकल टीचिंग इंस्टीट्यूट्स और सेंटर्स हैं, वो एक स्कूल से भी बेटर परफॉर्म करते हैं बिकॉज वहाँ पे एक पैशनेट टीचर है. राइट. तो एक स्कूल जो क्रिएटर है, जो स्कूल बनाता है या स्कूल चलाता है, क्या वो पैशनेट है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे इस सिस्टम में. बिल्कुल. देखिए, स्कूल को ना एक सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस एंगल से नहीं देखा जा सकता. एब्सोल्युटली. और जैसे मैंने कहा कि एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय द पैशन. यस. यदि आपने सिर्फ बिजनेस एंगल देखा, सो यू आर टोटली फोकस्ड अपॉन मेकिंग प्रॉफिट्स. यस. और आप यदि सेंसिटिव नहीं हैं इस बात के लिए कि यू आर डीलिंग विद लाइव्स, आप मेटेरियलिस्टिक चीजों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, आप लाइव्स के साथ जुड़े हुए हैं. एब्सोल्युटली. तो जाहिर सी बात है, वो तो डायरेक्शन भटक ही जाएगी. वेरी ट्रू. Because if you are not experienced, if you have not dealt with the children, you won't be able to understand their psychology, their demands, their requirement. और जब आप वो समझेंगे नहीं तो you won't be able to serve them the manner they require it. तो जाहिर सी बात है, अच्छा रहेगा कि जो एजुकेशन फील्ड में बहुत एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, दे शुड रन स्कूल, और उसी के हिसाब से बहुत स्टडी के साथ जो है बच्चों के सामने चीज़ें लानी चाहिए, सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड इन अ बेटर वे. After speaking lot of principles in this podcast, what I understood is everyone know कि ये flaws हैं, but सब चाहते हैं करना, बहुत अच्छी चीज़ है वो, कि हमारा सिस्टम पूरा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड स्टिल वी आर रनिंग विद द सेम. सो आप क्या मैसेज अपने फेलो प्रिंसिपल्स को देना चाहते हो कि हाउ यू कैन चेंज द एजुकेशन सिस्टम टुगेदर? यहाँ रनिंग द सेम अब नहीं कहा जा सकता, स्पेशली हम अपने बारे में बात यदि करें. सो वी स्टार्टेड अ वेंचर कॉल्ड एज द गुरु इज हियर इन आवर स्कूल. ओके. इसकी जरूरत कैसे आई? जरूरत ऐसी आई कि सिंस आवर चेयरपर्सन, शी इज हरसेल्फ एन एजुकेशनिस्ट, she understands the psychology of a child very well. So once we were discussing things about, because there were so many suicidal cases in Kota,
So when we were discussing all these things with her, so उन्होंने कहा कि एजुकेशन ठीक है, we are covering the syllabus, we are taking examination and all, that's absolutely fine. बट हमें यहाँ जो काम करने की जरूरत है, वी नीड टू वर्क अपॉन द लाइफ स्किल्स ऑफ द चिल्ड्रन. हमें बच्चों के इमोशनल क्वेश्चन पर बात करनी चाहिए, एंड दैट्स हाउ दिस प्रोजेक्ट द गुरु इज हियर केम इनटू एग्जिस्टेंस. नाउ इन आवर स्कूल we are choosing life skills, and that life skill is being celebrated in a month. Suppose we have taken life skill emotional quotient. So there are life coaches who are taking classes, and they are they're training the children about that life skill. और ये बहुत सारी चीज़ों से होता है. जैसे हमने कहा कि हम ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, हैंड्स ऑन लर्निंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए इमोशनल क्वेश्चन को, इमोशनल स्ट्रेंथ को भी ट्रेनिंग के साथ बूस्टअप किया जा सकता है. एंड दैट वी हैव स्टार्टेड. अब गेस करिए कौन सी क्लास से शुरू किया होगा हमने. I'm sure it should start from nursery grade. From nursery itself. जहाँ बच्चों को उतना मतलब नहीं पता, लेकिन फिर भी सीख रहे हैं ना. हाँ, बिल्कुल सीख रहे हैं. और उनकी जो एक्टिविटीज हैं, वो सारी एक्टिविटीज भी वो एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज हैं. So we have started, and I'm sure the other schools also, those are progressive schools, they have started thinking about these lines in this direction. कि बच्चों के लिए एजुकेशन तो ठीक है, वो एक अपनी जगह बात है, और एजुकेशन को भी रादर हम रियल सेंस में नहीं ले रहे हैं, लिटरेसी को हम एजुकेशन से कंपेयर कर रहे हैं. तो वन शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेरी क्लियरली. एग्जैक्टली. तो यहाँ लिटरेसी तो मेंटेन हो जाएगी. साइंस आने से लिटरेसी नहीं आती है. बेसिक मैनर्स आने से लिटरेसी आती है. एजुकेशन तो आपका, इसको लाइफ से अलग करके नहीं देखा जा सकता. ट्रू. व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ इज अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन. आपके एक्सपीरियंसेस आपकी एजुकेशन दे रहे हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दोज आर नॉट जैसे हमने डिग्रीज की भी बात की, बीएड की बात की, एमबीए की बात की, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे. दोज हैव नॉट डन बीएड बट स्टिल दे आर वेरी गुड टीचर्स. दोज हैव नॉट डन एमबीए बट उनको वो बिजनेस ऐसे रन करते हैं कि पूछिएगा ही मत. तो ये जो हम बात कर रहे हैं बच्चों की स्किल्स पे काम करने की, ये ठीक है, वो एक एजुकेशन सिस्टम है जिसमें आपके पास है ग्रेड्स हैं, लेवल्स हैं, वो सब अचीव होना ठीक है, बट लाइफ स्किल पर काम करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन ओनली वी वुड बी एबल टू ब्रिंग सम चेंजेस. राइट. सो इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर एक पेरेंट को एक मैसेज देना चाहेंगे आप, तो क्या मैसेज आपको लगता है कि एक पेरेंट को जाना चाहिए? पेरेंट को मैसेज ये जाना चाहिए, रादर ना केवल पेरेंट्स को, दोज हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, उनको ये मैसेज जाना चाहिए, बच्चे आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने का टूल नहीं है. वो एक इंडिविजुअल है हु इज हैविंग अ सेट ऑफ टैलेंट, इंटरेस्ट. उस नेचुरल जो चीजें उसको दी गई हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है. थोपिएगा मत, उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करिए. मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा. हाँ, वो थॉट चेंज करना पड़ेगा. ये चेंज करना पड़ेगा कि मैं जो नहीं कर पाया ये वो करके दिखाएगा. अब मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि देर आर सो मेनी प्रोफेशनल्स. मैं देखती हूँ कि कुछ डॉक्टर्स, बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम नहीं किया, रादर दे प्रेफर्ड गोइंग टू विलेज एंड सर्विंग दैट विलेज. तो ये कहाँ से आता है? यदि हर आदमी को सिर्फ पैसा कमाना ही उसका एक, हम मान के चले कि एक बेंचमार्क हो गया कि भाई इफ यू आर एबल टू अर्न दैट मच मनी देन ओनली यू शुड बी कंसीडर्ड एज सक्सेसफुल पर्सन. तो ये नहीं होना ना. आई गेस दिस इज आवर ओन डेफिनेशन. दिस इज आवर ओन सक्सेस डेफिनेशन इज डिफाइंड बाय अस. एग्जैक्टली. तो उस एक बच्चा जो है, जिसे भगवान मेरे ख्याल से द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड इज अ चाइल्ड. एब्सोल्युटली. उसको उसी एक प्रेशियस लाइफ के तौर पे देखिएगा. बात करिए, क्रिएटिविटी को बाहर आने दीजिए, खेलने दीजिए, जाहिर करने दीजिए. बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, अंडर द नेम ऑफ डिसिप्लिन हम बच्चों की आवाज खत्म कर देते हैं. इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं है मेरे हिसाब से. और दूसरा गुनाह जो पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों को स्क्रीन पकड़ा के. हाँ बिल्कुल. नहीं, आप देयर आर केसेस नाउ. हमारे स्कूल में ये केस आया था कि once a child got admitted with us, we are having an inclusive setup, special children are also studying with us. Right. उसके लिए एक special arrangement है बच्चों का. The child was considered to be the normal child, but once the child came to us and we started observing him carefully, we got to know the child has some problem. बच्चे की स्पीच नहीं थी. तो व्हेन आवर एकेडमिक हेड शी ब्रॉट दैट चाइल्ड टू मी, हमने कुछ चीज़ें थोड़ा सा एक डिस्टेंस पर डालने की शुरू की. द चाइल्ड वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग. हमें लगा कि बच्चे का शायद हियरिंग प्रॉब्लम है. वी कॉल्ड द मदर कि आई थिंक देयर इज सम इशू,
आप हियरिंग वगैरह चेक कराइए बच्चे की, और हमें दिक्कत लगती है कि बच्चे की जो ग्रोथ है दिस इज लिटिल डिलेड. मदर वॉज एक समझदार एक लेडी, मैं उनको कहूँगी, शी वॉज रेडी टू एक्सेप्ट. शी टुक द चाइल्ड टू अ डॉक्टर, और जो रिजल्ट्स हमारे सामने निकल के आए हैं वो ये आए हैं कि सिंस शी वॉज वर्किंग शी यूज टू लीव चाइल्ड एट होम, एंड जो उनकी जो बच्चे की ग्रैंड मदर थी वो खुद टीवी देखती थी, तो शी यूज टू टेक चाइल्ड इन हर लैप, एंड द चाइल्ड वॉज ऑल्सो वॉचिंग द टीवी. अब वो टीवी जो देखते हैं इतने सारे ब्राइट कलर्स का, जो एक पूरा एक रियल वर्ल्ड तो फीका लगने लग जाता है. नेटवर्क जो बना उसने बच्चे के न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब कर दिया और बच्चे की ग्रोथ वहां पर रुक गई. So this is this much harmful, and every parent needs to understand this thing. तो बच्चों को जितना नेचुरली खेलने दिया जाए, नेचुरल चीज़ों से लर्न करने दिया जाए, मेरे ख्याल से बच्चे उससे उसी तरीके से एक हेल्दी मेंटालिटी के साथ, एक हेल्दी ब्रेन के साथ बच्चे बड़े होंगे. ये ना बहुत अच्छी रील निकलेगी, मैं इसलिए डाल रहा हूँ यहाँ पे. बहुत ही अमेजिंग बात बोली मैम आपने. एक्चुअली एक आप कह सकते हो ट्रॉमा मेरे माइंड में आज तक है. व्हेन आई वाज इन सेकंड ग्रेड आई गॉट फेल्ड इन माय एग्जाम्स. तो एक टीचर कितना बड़ा रोल प्ले करता है, जो आपने आज डिफाइन किया कि आपकी किसी एकेडमिशियन ने उसको अंडरस्टैंड किया बच्चे को कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी और पेरेंट्स को गाइड किया. सो आई गॉट फेल्ड इन माय एग्जाम्स. रीजन वॉज वेरी सिंपल, बिकॉज सब में जो भी लिखा था गलत लिखा था मैंने. माई पेरेंट्स वर वेरी वरीड अबाउट इट कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि इसको अच्छे से पढ़ाया भी गया है. और मैं हमेशा सेल्फ स्टडी, और पेरेंट्स ने पढ़ाया मुझे. कोई ट्यूशन हमने ज़्यादा, मुझे लगता है 9th या 10th में मैंने फर्स्ट ट्यूशन गया हूँ अपनी लाइफ में. मुझे ट्यूशन ही नहीं पता था क्या होता है. तो मेरे पेरेंट्स बहुत वरीड थे कि ऐसा भी इसका IQ नहीं है कि ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. सो मैं सेल्फ स्टडी करता था, जैसे मैंने बताया, और बचपन से हमें सेल्फ स्टडी की आदत डाली गई है. सो प्रॉब्लम क्या थी, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी. माई आई साइट वॉज वीक. whatever I used to write on my notebook, तो मैं वो गलत नोट करता था क्योंकि मुझे प्रॉपर दिख नहीं रहा था. और सेम चीज मेरे क्लास टीचर ने जब नोटबुक चेक की हुई है तो उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं थी. वही सेम चीज मैंने अब जब एग्जाम में डाला, लिखा, और उसमें वो मिस्टेक्स दिखेंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने नोटबुक में ही गलत लिख रखा है. एंड दे फेल्ड मी इन ऑल एग्जाम्स. और क्या रीजन था? माय आई साइट वाज वीक. जस्ट इमेजिन एक टीचर कितना बड़ा रोल प्ले करता है. एक सेम एपिसोड हमारे पास आया. बच्चा वाज ब्रॉट टू आवर स्कूल, न्यू एडमिशन था बच्चे का, एंड विद द कंसर्न ऑफ द पेरेंट की चाइल्ड इज नॉट परफॉर्मिंग वेल. सो ठीक है, हमने एडमिशन लिया. आफ्टर 1 week ओनली वी कॉल्ड अप द पेरेंट कि बच्चा जो है उसको, द टीचर वाज ऑब्जर्विंग हर कि भाई बच्चा जो है वो उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है. कहा कि आप लेकर जाइए बच्चे को, उसकी आई साइट चेक कराइए. बच्चे को नंबर था, बच्चा हैड स्पेक्स. उसके बाद बच्चा ही इज लर्निंग क्वाइट वेल. सो यहाँ जैसे हमने बात करी कि पैशन की, एंड हाउ कॉम्पिटेंट यू आर इन योर प्रोफेशन. जब तक आप बच्चों से जुड़ेंगे नहीं, आपको इस प्रोफेशन के बारे में एक सेंस ऑफ सर्विस या गिविंग नहीं होगा, तब तक आप बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर सकते. Absolutely. और जैसे मैंने अभी आप शेयर करना चाहूँगी आपसे कि मेरा ये फर्म बिलीव क्यों है कि एक टीचर उसका एक रिमार्केबल इम्पैक्ट है बच्चों की लाइफ पर. देयर वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, ही वाज इन grade 12 विद मी, एंड आफ्टर पासिंग grade 12 he took admission in BTS. So after 2-3 years I got to know that he underwent an accident. I got to know from someone. I went to see him in a hospital. So parents ने बताया, since he was sleeping, parents ने मुझे बताया कि इसकी जो है मतलब ब्रेन को हिट किया है और ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है. ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिज फादर. उनको भैया करके वो बात कर रहा था. सो ही वॉज गिवन सम सेडेटिव्स. मैंने उसको बुलाया, बेटा नाम लेके बोला, आई वॉन्ट टेक नेम ओवर हियर. ही रिस्पॉन्डेड, अरे मैम आप? एंड मैंने कहा येस. व्हेन वी वर कन्वर्सिंग विद ईच अदर, सो अच्छा मैम आपकी वो कार थी, अब कौन सी कार आपके पास है? सो ही वॉज टॉकिंग टू मी इन दैट मैनर. आफ्टर when we were conversing with each other, his mother came to me कि मैम ये दवाई नहीं ले रहा है और थोड़ा वायलेंट हो गया था बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट, कि दवाई नहीं ले रहा है, आप एक बार ट्राई करिए. So I took medicine from mother and I offered him the medicine कि बेटा ये मेडिसिन ले लो, it is very important. एक बार उस बच्चे ने ये नहीं कहा कि नहीं मुझे नहीं लेनी है. He just took the medicine
और उसने कहा अच्छा मैम आप आए मेरे को बहुत, एंड देयर वर लॉट ऑफ अदर कन्वर्सेशंस दैट आई हैड विद हिम. व्हेन आई वाज कमिंग बैक आई वाज ऑलमोस्ट इन माय टीयर्स. एक बच्चा जो अपने फादर को जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, ही वाज एबल टू रिकॉग्नाइज मी एज अ टीचर, क्योंकि कनेक्शन था. उस दिन से ये समझ में आया कि एवरी minute that you spend with your children, every amount of energy that you spend with your children, it pays you back with reward. बहुत बहुत मेहनत करिए, अपने बच्चों के साथ जुड़िए, ये बहुत प्रेशियस लाइव्स हैं, इनके साथ मेहनत करिए और कुछ अच्छा करके दीजिए. ये प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा है, ये एक सर्विस है. और मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कम दिखाई नहीं देते, जहां एवरीवन इज स्ट्रगलिंग आइडेंटिफाइंग देयर एग्जिस्टेंस और द पर्पस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस ऑन लाइफ. इफ यू आर अ गुड टीचर, आप उसको कभी आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि आप क्यों यहाँ पर आए हैं, बिकॉज यू आर एबल टू ट्रांसफॉर्म मेनी लाइव्स. सो दैट गिव्स मी अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कि ठीक है, भगवान ने हमें यहाँ भेजा है तो वी आर एबल टू डू समथिंग. बहुत मजा आ रहा है आपके साथ कन्वर्सेशन करके, बट ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट हमें इस पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड करना पड़ेगा. मे बी अनदर एपिसोड विद यू. एग्जैक्टली. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कहा ना कि मैं इससे सोचती हूँ कि वंस आई विल बी रिटायरिंग फ्रॉम दिस जॉब, सो आई विल बी सिटिंग एट होम, सो व्हाट विल आई बी डूइंग? आई विल बी राइटिंग अ बुक, आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस. और ऐसा नहीं है बच्चे बिगड़े हुए हैं, ये सब कहने की बातें हैं. ठीक है, एक एज होती है जहाँ वो बहुत सारे प्रेशर को हैंडल करते हैं, बट इफ यू आर एबल टू कनेक्ट विद देम इन अ राइट मैनर, आप उन बच्चों को सही डायरेक्शन में वापस लेकर आ सकते हैं. Absolutely right. Thank you so much, ma'am, for coming, and Pleasure we had a great time. Thank you. I Thank you guess. so much. Yeah.